وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ رات میں جب سو رہے ہو، لوگ کراٹے کی نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ رات کی تاریکی میں اٹھو، اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام، ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں، بہت لائق فائق کے آدمی ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب، جھوٹ نہیں ہے، آپس میں ملانے کے لیے، دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو یہ عمل کیا جائے۔ آج یہاں ایسا ہوگا، آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پیٹرول ڈال دیا جائے، دونوں آپس میں اتنا لڑا دو، یہ اس کو دشمن بنا دو، اس کو دشمن بنا دو، یہ مارے اس کو، یہ ختم کرے۔ میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں، اسلام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ ڈر، یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا، جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگو تم اپنا وزن کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا، اور قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا، اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں، نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت، اگر میں ابھی مر گیا تو
जन्नत की जहन्नम। मैं अपने भाई का दिल दुखाता हूँ, मैं अपने भाई के लिए नफरतें फैलाता हूँ। अरे मैं अपने भाई से माफ़ी मांग लूँ, अपने भाई से माफ़ी मांग लेता हूँ। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी तो बहुत सारी बीमारियां दुनिया में चल रही है, कभी किसी को हार्ट अटैक अचानक हो जाता है, कभी कोई एक मच्छर काट लेता डेंगू की बीमारी, वो आदमी उसी से मर जा रहा है। न जाने किन किन बीमारियों में आदमी लग करके अचानक मौत हो रही है। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो, और ये बदलाव और समाज के अंदर ये सुधार इसी एक ही वजह पैदा हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में पैदा कर, जहन्नम की आग को अपने दिल के अंदर डाल कि आज नहीं तो कल उस जहन्नम का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इंसान अपने आप के अंदर ख्याल करने की कोशिश करे, आज नहीं तो कल मरना तो है और अल्लाह के पास जाना है। अगर इस बात का अकीदा और ईमान नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन रखना जरूरी है। जितना यकीन रहेगा इंसान उतना ज्यादा अल्लाह ताला से डरेगा। तो ये भाईचारा अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने यहाँ से नफरतों को ख़त्म कीजिए, सलामती और अपने यहाँ सलामती को बढ़ावा दीजिए, नफरतों को ख़त्म कीजिए। बगल में गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ भी अच्छा रवैया अपनाइए। गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। मरीज की इयादत करने के लिए जाइए, अगर बगल में आपका गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, अगर वो बीमार है तो उसको भी देखने के लिए जाइए। आपसे जितना हेल्प हो सकता है उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। ये इस्लाम बताता है मेरे भाइयों। लेकिन बहुत से मुसलमान हैं, आज मुसलमान बीमार पड़ता तो देखने के लिए जाता नहीं है, और अगर जाता तो उसको इतना भी मालूम नहीं है कि बीमार के पास खड़े होकर के कौन सी दुआ पड़ी जाए। कितने लोग हैं यहाँ पे बीमारियों को देखने के लिए जाते हैं? आप लोग जाते तो जरूर होंगे, उसके सामने पहुंच करके क्या दुआ पड़ता है? आप तो दवा तो दे नहीं सकते, सुइया तो लगा नहीं सकते, इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते, तो आपके पास एक ही चीज़ है, दुआ। कौन सी दुआ देते हैं मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम? हाथ उठाइए। तो इतने रात को हम यही सब करवाएंगे। अब कितने को मालूम है बताइए, गौर कीजिए मेरे भाई। क्या जाकर के मंत्र पढ़ देते हैं क्या? चतुर्वेदी आप भी हैं? गौर कीजिए, जब आप किसी मरीज के पास जाइए तो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मरीज के पास जाइए तो कहिए ला बासतहुर इंशाअल्लाह, ला बासतहुर इंशाअल्लाह, ला बासतहुर इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़हिबिल बास रब्बिन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाउन ला युगादिरु सक़ामा। इस कौम को भी इतनी दुआएं मालूम नहीं है। और किसी फिल्म का गाना पूछ दो तो भोजपुरी गाना तो सबको याद है। मेरे भाइयों, अजीब मसला है, आज हमारे यहाँ मेरे भाई की चीजें मालूम नहीं है और अपने आप को मुसलमान का दावा करता है, अपने आप को अहले हदीस कहता है। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, इतनी छोटी छोटी दुआएं तो आप याद कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुआएं नहीं है। इस वजह से आई मुसलमानों, अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो, और हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती है। उसके अंदर आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके अंदर जो चीजें, जो खराबियां हैं उसको अपने यहाँ से डिलीट करना होगा। अपने यहाँ, अपने अंदर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने यहाँ अच्छाइयों को लाना पड़ेगा। जैसे शराब लोग पीते हैं और बड़ी तेजी के साथ ये शराब की लत पर में ये कौम डूबती जा रही है और नौजवान नस्ल शराब के आदी बनते जा रहे हैं। शराब को छोड़ने की कोशिश करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस फरमान को याद रखो कि जो आदमी शराब पिएगा और शराब पीने वाले की 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। जो शराब पीने वाला होगा और फमाता, और अगर इसी हाल में मरा तो दखलन नार, तो वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। ऐ शराबियों, अपने यहाँ से शराब को खत्म करो। मेरे भाइयों, वो कौन सी चीज थी और कैसा अकीदा था और अल्लाह पर कितना यकीन था। जब एक पुकारने वाला पुकारता है, वो लोगों, आज से शराब बंद कर दी गई है, आज से शराब हराम कर दी गई है, वो लोगों शराब मत पियो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। सुनिए, पोठिया घाट के लोगों,
मनसाही कटिहार के लोगों जरा इस मंजर को देखो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। बहुत से लोग बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे और इसी दौरान एक पुकारने वाला पुकारता, लोगों आज से शराब हराम कर दी गई है, आज से कोई शराब न पिए। लोगों के हाथ में गिलास में शराब भरी हुई है, लोग शराब लोग पी रहे हैं, उसी गिलास के जरिए से शराब फुल है गिलास के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, शराब पीते पीते लोग रुक गए। गिलास में फुल शराब है, पी रहे हैं, लेकिन ये आवाज सुने तो रुक गए और लोगों ने सुना शराब हराम कर दी गई है। अब ये भी सोचते थे अरे हराम कर कल से नहीं पिएगा, आज पी लेते हैं, जो बचा हो उसको आज पी लो ना। लेकिन ऐसा नहीं किया। हाथ में जो बोतल और जो गिलास था उस गिलास को जमीन में फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। लोगों ने अपने घरों से मटकों को निकाल करके मदीना की गलियों में तोड़ना और फोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितना जबरदस्त था, अल्लाह का डर और खौफ कैसा था। मेरे भाइयों, शराब के बगैर लुकमा अंदर नहीं जाता था। ये लोग कुरान की आयत सुन करके और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज सुन करके अपने शराब को बंद कर दिया करते थे। आज इतनी तकरीरें इस कटिहार, पूर्णिया और बिहार के अंदर इतने जलसे हुआ करते हैं और इन जलसों के अंदर शराब के ऊपर तकरीरें हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों, कल भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी शराब पिया करते हैं। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान तो रखते हैं, नबी को तो मानते लेकिन नबी की नहीं मानते। नबी को कुफ्फारे मक्का भी मानते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, नबी की नहीं मानी तो वो लोग जहन्नम के अंदर चले गए। आज हम और आप नबी को मान रहे हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं, तो अपना ठिकाना को फैसला कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वो लोगों, अपने आप और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। शराब से उसी वक्त बच सकते हो जब आपको मालूम हो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया तो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या पता कब किस वक्त कौन मर जाएगा, क्या पता मेरे भाइयों, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ मरेगा कोई जानता ही नहीं है। कब किसकी मौत आएगी किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। कब मरेगा, जवानी में, बुढ़ापे में, कल सुबह, किसी को कोई पता ही नहीं है। मरना तो जरूर है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी, ऐलान कर दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अलग अलग दवाइयों को खा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐ लोगों तुम्हें मरना है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और मिलना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मौत आनी ही है, मरने से बच नहीं सकते हो। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत होते। लेकिन आज भी जाइए मदीनतुर रसूल, जाइए उस मस्जिद नबवी के पास जाइए, बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, आपको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र मिलेगी। आपकी नजर जब उस कब्र के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भाइयों चीख करके ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, आई अबुल कलाम आप क्या चीज हो, आई अब्दुल रहमान आप क्या चीज हो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा सकते हैं तो हम भी तो इस दुनिया से जा सकते हैं। ये मेरे भाई को जहन में रखो, मौत तो आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जब मौत आनी है और अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है तो मेरे भाइयों अपने जिंदगी के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। शराब से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, जिना से तौबा कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफी मांगने वाले को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। हजरत आयशा ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी, ये इस पवित्र रातों में, शब कदर में, ताक रातों में
कौन सी दुआ मांगू? तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई थी, आय आयशा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आय अल्लाह, माफी को तू पसंद करता है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे। हर कोई अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि बंदा मेरे सामने हाथों को फैलाए। और अल्लाह कहता है मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसके हाथ को खाली वापस कर दूं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब 99 कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है, तो अयमन शाही कटिहार के लोगों, आपको क्यों नहीं माफ कर सकता? अल्लाह से रुजू करो, तौबा करो, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ और रात की तारीकी में रो रो करके माफी मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आईनानी ला तमस्सहु अन्नार आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है जो आंखें अल्लाह को याद करके खौफ इलाही में, जहन्नम को याद करके, अज़ाब अलीम को याद करके रोता हो और अपने आंखों से आंसू निकालता हो। ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर जा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम के अंदर कैसे जाएंगी? जो अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंखें हो, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने वाली आंखें हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज तो हम हंसने और हंसाने वाले काम कर रहे हैं, रोते कहाँ हैं? रोते कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, कितना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोते थे, इतना ज्यादा रोते थे, रोने की वजह से आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। और बाकायदा कभी कभी जब नमाज वो पढ़ा करते थे, नमाज वो पढ़ा करते थे हजरत उमर फारूक, तो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रोना शुरू कर देते। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। तेरा अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरा अज़ाब वाक़ई एक न एक दिन वाक़ई होने वाला है। इस आयत को पढ़ करके उमर फारूक ज़ारो क़ितार रोया करते थे मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक के अलावा और दीगर सहाबा कराम को आप देखेंगे तो सहाबा कराम बहुत ज्यादा रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी को उठाइए, हजरत उस्मान गनी जब कब्र के बारे में सुना करते थे और अज़ाब कब्र के ताल्लुक से अगर कोई किसी से कुछ सुन लिया करते थे, बहुत ही ज्यादा रोते थे। और कब्रिस्तान अगर जाया करते थे और कब्रों के पास जाते थे तो बहुत ही ज्यादा दहाड़ मार करके रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर बदलाव लाना है तो कभी कभी कब्रों की भी जियारत कर लिया करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी कभी उन कब्रों के पास जाया करो और सोचा करो यहाँ भी तो मेरा भाई दफन है, मेरी बहन दफन है, मेरा रिश्तेदार दफन है, बड़े पैसे वाला आदमी था वो भी तो यहाँ दफन है, आए एक न एक दिन मुझे भी दफन होना है। इमाम कायनात ने तो इसी का तज़किरा किया था और आपने फरमाया था फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। ऐ लोगों, मौत को याद करो, फज़रूहा, ऐ लोगों इस कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो। आज मुसलमानों के अंदर कब्रिस्तान में जाने का आज रवाज खत्म हो चुका है। आज कब्रिस्तान नहीं जाता है, कभी इस बाजार में गया तो कभी उस बाजार में गया, कभी यहाँ भागा तो कभी वहाँ भागा, और जलसों में भी आता तो वही बाजार ही की सिलसिले में मेला लगेगा, हाँ लड़कियाँ आएंगी, चलो एंजॉय करते, मस्ती करते, ये जलसे भी आते, लेकिन मकसद सुनने के मकसद से नहीं, अपने अंदर इस्लाह पैदा करने के मकसद से नहीं, जलसों के अंदर भी आते तो वही मेला ठेला के चक्कर में आते हैं। चलो चलो जाकर के हम बाजार का मुआयना कर लेंगे और चलो हम जाकर के एंजॉय कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। वो लोगों कब्रिस्तान की जियारत किया करो, वो लोगों कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जाने से और कब्रों की जियारत करने से तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी की हकीकत मालूम होगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आपस में दुश्मनी रख करके क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा और जिना करने से क्या फायदा, मुझे कब्र के अंदर जा करके मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये जहन के अंदर बैठा लो और महीने के अंदर 1 मरतबा अगर तुम
قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائی قبروں کی زیارت کرو۔ بازار تو بہت جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائی قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو۔ آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا ہے جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے۔